So next factor to affect the ionization enthalpy is what? Electronic configuration. What's electronic configuration? So first I'm going to explain this electronic configuration, right? So electronic configuration means what? Distribution of electron, can say that distribution of electron around the nucleus in different shell, subshell, and orbital. Okay. And for this electronic configuration, lot of rules are given there. Hubble principle, right? Since this electronic distribution, yeah, distribution of electron around the nucleus can take place by the different rules like Hubble principle, Hund's rule, and Pauli's exclusion principle. So that part I will explain in different lecture, but just I'm giving some little introduction about this electronic configuration. So say actually electron distributed in different shell, subshell, and orbital according to their increasing energy. See, जरा एग्जांपल देख लो, जिसको नहीं पता है वो जरा देखो इसमें, ठीक है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगे. Here is this nucleus and here is your shell. Okay. A, L, M, etc. These shells having some subshells, like first shell having what? S, second one is having what? S and P, third one is having what? S, P, D, etc. So this S name is what? 1S, second is what? 2S and 2P, this is what? 3S and 3P, 3D, right? Accordingly we can give the name. ये सबशेल कौन से सबशेल कौन से शेल में है, अकॉर्डिंगली वी गिव द नेम. एस इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो नेम कैसा देंगे? 1s, 2s, 2p, 3s, 2p, 3p, 3d, etc. नाउ इलेक्ट्रॉन enter in increasing order of energy, right? Means first enter in lower energy, then enter into the higher energy. Just 5 minutes, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है? First I'm going to explain this S subshell. S subshell having one orbital, and one orbital can occupy maximum 2 electrons. You are observing here. One clockwise, second anti-clockwise. P subshell having 3 orbitals and occupy maximum 6 electrons. D subshell having 5 orbitals and maximum occupy 10 electrons. F subshell having 7 orbitals and occupy maximum 14 electrons.
सो एस के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। पी के पास कितने हो सकते हैं बेटा? यहाँ पे 6। डी के पास कितने हो सकते हैं? 10। और एफ के पास कितने हो सकते हैं? 14। अब जरा देखो इलेक्ट्रॉनिक का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं मैं, इतने से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो कैन मेक इन दिस वे। वन एस, देखना है आपको, वन एस, टू एस, टू पी, सॉरी सॉरी सॉरी, पी एस, फोर एस, फाइव एस, सिक्स एस, सेवन एस, टू पी, थ्री पी, फोर पी, फाइव पी, सिक्स पी एंड सेवन, थ्री डी, फोर डी, फाइव डी एंड सिक्स डी, फोर एफ एंड फाइव एफ। ये ठीक है। अब जरा देखो, जस्ट इसको मुझे कट करना है। हाँ? कैसे? सीधे this is main important part for the electronic configuration. How to write the electronic configuration? You can make this diagram. ये आपको आना चाहिए बनाने के लिए। Then you can electronic configuration of any element. Sorry, थोड़ा स्किप हो रहा है। Okay, this is way to write the electronic configuration. कैसा देखो यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर इन 1s, then enter in 2s, then enter in 2p, then 3s, then 3p, 4s, then 3d, 4d, 5d, 5s, 4p, 5s, then 4d, 5p, 6s accordingly. This is way to distribution of electron because this diagram indicating the energy of 1s is lowest, then energy of 2s, then 2p means what? This is the increasing order of the energy. 1s, then 2s, then 2p, then 3s, then 3p. See this. After 3p is what? 4s, not 3d. 3p के बाद क्या आएगा? 4s. 4s, then 3d, then 4p, then 5s, right? Then 4d, then 5p accordingly, right? Now this is the distribution of electron. पहले इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ऐसा है। अब आपको पता है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? मैक्सिमम 2। s p में कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 6। डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14। अब उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई एम टेकिंग दिस वन एग्जांपल। देखो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल here I'm taking this carbon and its atomic number is 6. It means what? It having 6 electron. How to write the electronic configuration? तो पहला इलेक्ट्रॉन देखो 1s में जाएगा, यहाँ से डायग्राम से भी देखो, यहाँ पे भी देखो 1s, we write this 1s,
S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बेटा? 2. We write this 1s2. From 6 electron, 2 electron distributed, right? Then electron after this 1s enter into the what? 2s. देख रहे हो 2s है, तो अगेन वी राइट दिस 2s. s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं. टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है. 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ वी गो फॉर दिस व्हाट? p. वी राइट दिस 2p. p की कैपेसिटी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन अपने पास बचा कितना है? 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं. 4 2 and 2 4. Only 2 electrons are remaining, so we write this what? 2. This is the electronic configuration, right? इसको बॉक्स में कैसे लिखेंगे? देखो s के पास एक ऑर्बिटल होता है, s के पास एक ऑर्बिटल होता है, p के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. तो यहाँ पे कैसा होगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अनपेड. है देखो, एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स होंगे तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उनकी पेयरिंग होती है. दैट इज द हॉर्न्स रूल. वो भी आपको ध्यान में रखना है. तो एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया. आपको समझाइए. एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ. सपोज मैं अब ले लिया यहाँ पे एल्यूमिनियम 13. चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग. तो अब जरा देखना है यहाँ पे, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2p में 6 इलेक्ट्रॉन. आ रहा समझ में ना? 1s 2s 2p देन 3s. देखो यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं. 2 2 4 6 10. फिर जाएगा 3s2 12, देन 3p1. एक ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं. कैसे बनाएंगे इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर? यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी 1 ऑर्बिटल है, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे s है 1 ऑर्बिटल, और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स अगेन. अब देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग. थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर, 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर, 2 electrons here, 2 electrons here, 2 electrons here, 2 electrons here, and 1 electron here. That's the distribution of electrons. I hope understood this part. Yes. Yes, sir. Very good. All of you understand? Okay, Yusuf, why are you coming late? सॉरी सर. अरे मैं पूछ रहा हूँ क्यों आया लेट? सर मैं लेट उठा इसके लिए. ओके ओके, इट्स ओके. चलो, ये बात समझ में आ गई आपको? ये चीज समझ में आ गई. अब मैं फैक्टर इफेक्टिव बताने जा रहा हूँ. पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया. इज इट क्लियर? इसमें किसी कुछ डाउट है? ओके, गुड गुड. चलिए अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाउ दिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाउ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफेक्ट ऑन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. राइट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. देखते हैं इसको. चलिए आप नोट डाउन करके रखो इसको. यहाँ से ले लेता हूँ. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बता रहा था आपको. फैक्टर अफेक्टिंग ionization enthalpy, ionization energy, right? In this I am explaining electronic configuration. Okay, so in this electronic configuration, ध्यान से समझना है यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ. राइट, how this electronic configuration affect this ionization enthalpy. Okay, so we can say that electronic configuration, ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी
ionization enthalpy, just let's okay, sorry. So ionization enthalpy, right, is affected by ठीक है, ionization enthalpy is affected by exactly half filled or complete filled orbitals. Half filled or completely filled orbital. ठीक है, कैसे? जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जरा ध्यान से समझना इसको. If an atom contains exactly half filled contains exactly half filled or completely filled orbital, then such an arrangement has extra stability. Extra stability, right? Therefore,
removal of an electron right, removal of an electron from such an atom requires more energy. Requires more energy than expected. अच्छा, अब जरा समझ लेना यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ठीक, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है? क्या लिया एग्जांपल? बेरिलियम एंड बोरॉन। जरा समझो बेटा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ दिस बेरिलियम इज व्हाट? 4 and boron is what? 5. Atomic number of beryllium is what? 4 and boron is what? 5. We write this electronic configuration. अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बता सकता हूं जो मैंने सिखाया आपको. How to write it? 1s2 2s2. यहां पे लिख सकते हैं 1s2 2s2 and 2p1. राइट है? अब जरा देखना यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ऑर्बिटल है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हियर? 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, एस के पास एक ही ऑर्बिटल होता है ना. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे भी एस है, 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे भी एस है, 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन. इज इट क्लियर? नाउ व्हेन वी मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ शेल रिमेन एज इट इज. देखना जरा से, यहाँ पे ये फर्स्ट सेल और यहाँ पे सेकंड सेल है. If I am going for the beryllium, then 2 electrons present in the first cell and 2 electrons present in the second cell. When I am going to the boron, then 1 electron enter into the same cell. और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यही सिखाया था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं सेम सेल में, राइट, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी उसकी? छोटी हो जाएगी, राइट. आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा उसका? ज्यादा हो जाएगा. लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि बेरिलियम और बोरॉन में एक डिफरेंस है कि बेरिलियम के पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल है और बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में जो पहला लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है? इनकम्प्लीट है. ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, जरा देखो यहाँ पे बेटा, फुलफिल्ड. और ये कैसा है? इनकम्प्लीट, पार्शियली फिल्ड है. सो डेफिनेटली इसके पास थोड़ी सी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा आ गई जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे. और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू दिस. ये इलेक्ट्रॉन इजिली आप रिमूव कर सकते, बट यहां से ये इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, देखना ध्यान से, हाँ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन, while boron is right hand side to the beryllium. I hope you understood this part. Yes, sir. Very good, very good. नोट डाउन कर लो इसको.
Have done? One side. Write it, write it. Take your own time. Done, sir. Okay. सी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं देता हूँ आपको, जरा देखना है यहाँ पे। अभी तक जितने भी फैक्टर बताए थे सारे फैक्टर्स हो गए, कैसे इफेक्ट डालते हैं वो भी आपने सीख लिया अच्छे से। अब जरा देखना है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है मेरे पास। देखो क्वेश्चन इज व्हाट, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ correct order of the first ionization enthalpy of oxygen, nitrogen and carbon. Option A, C is greater than N is greater than O. Option B, C is greater than N, sorry, opposite बनाता हूँ, C is less than N is greater than O, और मैं B बनाता हूँ, C बनाता हूँ, O is greater than N is greater than O, oh my god, C, and D I'm writing here, C is greater than N and N is approximately equal to O. Which one is right? एक और क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ मैं। See, I am giving this question because of clearing your concept। हाँ, जो भी अभी पढ़ा आपने अप्लाई कीजिए और देखिए क्या राइट हो गया। ये चलो इसमें कैसा हुआ, क्या आंसर हो गया इसमें?
first, which is the correct order of the first ionization enthalpy of oxygen, nitrogen, and carbon. So listen, first we have to write this electronic configuration of this elements. Like that oxygen, its atomic number is what, 8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये 1s2 2s2 2p4. ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लास्ट का ही बना रहा हूँ यहाँ पे p, क्योंकि फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी लेना है तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को. यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4. दिस इज वे टू डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ, पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उनकी पेयरिंग होती है. अब पढ़ोगे द हंस रूल में. नाइट्रोजन, इट इज व्हाट, 7. यार देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 1s2 2s2 2p3. यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. राइट इन दिस वे 1 2 3. और इसके बाद मैं लिखता हूँ कार्बन. Carbon 6 electrons. Here we write this what, 1s2 2s2 2p2, 2 electrons here. जरा देखो बेटा यहाँ पे क्या कंडीशन है, कैसे होगा, क्या राइट है, समझ लेना. यहाँ पे सबसे पहली बात देखो, जब हम अरेंज करते हैं तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स है और नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स है. मतलब न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन में ज्यादा है और कार्बन में कम है. प्लस एक और यहाँ पे चीज ये होती है कि नाइट्रोजन के पास जो ऑर्बिटल है वो पूरा हाफ फील्ड है. देखो पी की कैपेसिटी कितनी बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन रखने की, और हर एक ऑर्बिटल में यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है. मतलब हाफ फील्ड हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड हो गया ना. हाफ फील्ड क्या होगा, थोड़ा स्टेबल हो जाएगा. अब ये देखो पार्शियली फील्ड है, ये भी इनकम्प्लीट है, यहाँ भी पार्शियली फील्ड है, यहाँ पे कंप्लीटली फील्ड या फुल हाफ फील्ड नहीं है. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जब हम कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, क्योंकि हाफ फील्ड भी है प्लस इसमें प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है. तो नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन द कार्बन. तो नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन किसमें, बी में. बट यहां पे दिया है नाइट्रोजन इज लेस ग्रेटर देन ऑक्सीजन आल्सो. नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन आल्सो. देखो जब हम अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है. एटॉमिक नंबर इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है. आप जैसे ही इलेक्ट्रॉन फिलअप करने जाओगे तो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं. राइट, इसमें भी 2 शेल होते हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2. तो इसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6. इसमें कितने हो गए, 7. इसमें कितने, 8. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम शेल में इंक्रीज कर रहा है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है. दैट्स व्हाई लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करनी चाहिए. लेकिन यहां से यहां पे तो इंक्रीज करती है, लेकिन यहां से यहां पे भी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है. उसके ऊपर इफेक्ट कौन डालता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. राइट, ये लॉजिक हम कार्बन और नाइट्रोजन में लगा रहे हैं, बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये लॉजिक नहीं लगा सकते. कार्बन और नाइट्रोजन में क्या हो रहा है कि कार्बन से नाइट्रोजन पे जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम सेल में इंटर कर रहा है. दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. डेफिनेटली नाइट्रोजन का ज्यादा होगा कार्बन से. लेकिन यही सेम लॉजिक जब हम ऑक्सीजन में लगा रहे हैं तो अप्लाई नहीं हो रहा है. इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है पी में और नाइट्रोजन के पास 3 है. 3 इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड हो गया और हाफ फील्ड की वजह से इसकी थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई और इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन. Therefore, ionization enthalpy of this oxygen is greater than the nitrogen. So B option is right. I hope understood this part. Yes, sir. All of you understood? Yes, sir. Very good. Very good. Now see, what about this one? ये तो मैंने अभी सिखाया आपको. बेरिलियम और बोरान में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो बेरिलियम का क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है बोरान से. ये तो सिखाया अभी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 हो जाता है. यहाँ पे क्या हो जाता है, 1s2, इसका होता है 1s2 2s2 एंड 2p1. यही तो होता है इसका. तो ये क्या है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, ज्यादा स्ट्रांगली ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी. तो देखो किसमें ज्यादा और कम है, रिस्पेक्टिवली दिया है ना. तो यहाँ पे देखो डी ऑप्शन राइट है ना, ये ज्यादा है और ये कम है. मतलब बेरिलियम का ज्यादा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू द बोरॉन बिकॉज ऑफ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. क्लियर है? Sir. Yes, sir. वेरी गुड.
So I hope this part you understood. Yes, sir. चलिए अब इसके बाद ओके मैं इसका ट्रेंड बताने वाला हूँ, कैसे ट्रेंड होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे और राइट टू लेफ्ट जाने पे। उसके पहले जरा एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे। हाँ, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जरा बहुत अच्छे से देखना मैं क्या बताने वाला हूँ। हाँ, देखो मैं फिर से ले रहा हूँ कार्बन, मैं ले रहा हूँ नाइट्रोजन, मैं ले रहा हूँ ऑक्सीजन, मैं ले रहा हूँ क्लोरीन। देखना बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया इसका। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, फाइव। मैं लास्ट का बस ऑर्बिटल बना रहा हूँ यहाँ पे, जरा ध्यान से समझना एकदम अच्छे से। बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी चीज, आपको समझ में आएगा, मजा भी आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो अब जरा समझो यहाँ पे। हाँ, जब मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा हूँ यहाँ पे, एकदम ध्यान से समझना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा हूँ मतलब क्या मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। राइट, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, अब ये क्या हो जाएगा, C प्लस हो जाएगा। यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, अब ये क्या हो जाएगा, N प्लस हो जाएगा। यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, ये क्या हो जाएगा, O प्लस हो जाएगा। और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, ये क्या हो जाएगा, F प्लस हो जाएगा। राइट है, जरा समझना बेटा यहाँ पे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना इसके पास, इसमें से निकाल दिया, इसमें से भी निकाल दिया मैंने, लास्ट का बस लिख रहा हूं मैं। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा और इसमें से निकाल दिया तब इसके पास कितना हो जाएगा, 3। और इसमें से निकाल दिया तो इसका कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझो यहाँ पे। हाँ, ये हो गया इसका। अब सपोज इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन में निकालने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। तो यहां से निकाल दिया तो क्या हो गया, C2 प्लस हो गया। मैं इसमें देता हूं बार बार ऐसा, प्लस प्लस। अब इसके पास ये ऑर्बिटल क्या हो गया, खाली हो गया, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चा इसके पास। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, ये कैसा हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है इसके पास, ये क्या हो गया, N प्लस प्लस। और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला भी, ये क्या हो गया, O प्लस। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ये हो गया। इसमें से भी निकाला मैंने एक और इलेक्ट्रॉन, अब ये हो गया F प्लस प्लस। कितनी बार समझ में आ गई, आप जरा समझना, यहाँ पे ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे कंपेयर करने जा रहा हूँ बेटा। तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम निकालने जा रहे हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, राइट। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन द कार्बन,
but nitrogen is also greater than the oxygen and this one is greater than the first ionization enthalpy. आपको समझ में आ रही होगी चीजें, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था अभी, राइट है? यस, हाँ सर। ठीक है। अब जरा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करो। यहाँ पे एक निकल चुका है, अब दूसरा निकालने जा रहे हैं। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देखो यहां पे भी नाइट्रोजन का तो ज्यादा होगा कार्बन से, ठीक है, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं। अब जब ऑक्सीजन की बात करने जा रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे देखना, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं तो ये अब पार्शियल फील्ड हो गया और ये हाफ फील्ड हो गया। आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नाउ दिस बिकम हाफ फील्ड ना, राइट? आफ्टर रिलीजिंग दिस वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से निकाल दिया बेटा, यहां से अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये कैसा हो गया? हाफ फील्ड हो गया। अब हाफ फील्ड हो गया तो स्टेबल हो गया थोड़ा ज्यादा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन द नाइट्रोजन। और जब फ्लोरीन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और यहाँ पे पार्शियली फील्ड है, दैट्स व्हाट इज ग्रेटर देन। तो आपको समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मैं इसको ऐसा लिखता हूं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ nitrogen is greater than the oxygen, but second ionization enthalpy of nitrogen is less than oxygen because of this what? Half filled orbital. I hope understood this part. Yes, sir. Yes, sir. Just note down this part, note down this part. तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आपको देखना पड़ता है फर्स्ट और सेकंड के लिए। जब अच्छे से एंट्रेंस लेवल पे एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान देखना पड़ेगा क्या देना है, क्या 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 चीजें आपको कंसिडर करनी है।
Okay, have done. Sir, one. Write it. Done, sir. Okay. ठीक है, देखो अभी next part. Now I'm going to explain trend. ठीक है. अच्छा, ये एक जरा नोट डाउन कर लेना यहाँ पे ये पार्ट. फुलफिल्ड ऑर्बिटल are more stable than half-filled orbital. Is more stable than partially filled orbital. ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है. ठीक है, चलिए. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्या आप कर पाओगे? एक जरा सा एक ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ फिर आगे. ठीक, अच्छा क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे. सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी of an element X are given in the table in kilocalorie, right? Electronic configuration of element X is क्या होगा? देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज गिवन हियर. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. देखो इन किलो जूल. हाँ,
options are given here. B, C, and D. ये चलो बताओ which option is right. आपको समझा कॉन्सेप्ट? सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन निकाल रहे 1 2 3 4 और ये दिया है, इसकी वैल्यू दी गई है. So on that basis you have to find out the electronic configuration. अच्छा क्वेश्चन है, बताइए मुझे. Sir, option C. ऑप्शन सी. Yes, Okay. sir. Same. गुड, देखते हैं. सर क्योंकि बोलो. इसमें 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर पहले दो एकदम मतलब इजी है निकालना, फिर बाद में स्टेबल हो जाता है ना, तो उसके लिए जो थर्ड वन निकाल रहा है उसका ज्यादा पावर ले रहा है निकालने के लिए. Yes, right. So why not D? सर उधर है स्टेबल है ऑलरेडी, मतलब इट इज फुलफिल्ड. हाँ फुलफिल्ड है, बराबर है. हाँ तो फुलफिल्ड है. देखो तो पहला वाला जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? थोड़ा ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू सेकंड. ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो आप? सर नहीं, नहीं. एक ही एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, सपोज एक्स की, हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना. फर्स्ट से अगर मैंने यहाँ पे निकाल दिया एक इलेक्ट्रॉन और इट बिकम व्हाट? एक्स प्लस. राइट, दिस इज व्हाट आयोनेशन एनर्जी फर्स्ट. और सेम एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन मैं और निकाल रहा हूं यहाँ पे, तो इट बिकम व्हाट? प्लस प्लस. सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. सो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज 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 ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्या मेरी बात समझ में आई? अभी तक मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंपेयर कर रहा था दूसरे से ना बेटा. यहाँ पे सेम एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, और एक ही एलिमेंट में जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आप जरा समझो ना. यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में सपोज 5 प्रोटॉन्स है और बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स है. समझ लो इसको. अब सपोज ये हाफ फील्ड है, स्टेबल है थोड़ा सा, पहला इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को 5 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं. डेफिनेटली अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी फैक्टर है, कोई भी फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा. यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा. इट मींस व्हाट? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन. ऐसे दूसरा या तीसरा निकाल दिया तो हमेशा ये सीक्वेंस फिक्स रहेगा. फोर्थ है तो फोर्थ वन इज ग्रेटर देन द व्हाट? थर्ड वन इज ग्रेटर देन द व्हाट? सेकंड वन इज ग्रेटर देन व्हाट? फर्स्ट वन. ऑलवेज 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 रिमेंबर इट. गॉट इट? यस सर. मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है. हाँ सर. हाँ, तो ऑन दैट बेसिस में हम कह सकते हैं कि यहाँ से निकाला फिर डिफिकल्ट हो गया, यहाँ पे निकला, बट वहां पे देख रहे हो डिफरेंस आ रहा है. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम लोग, और ये 3s रहेगा. आई एम सो सॉरी, दैट विल बी व्हाट? 3s. हाँ, अब जरा ध्यान से देखो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को. 3s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दो, तो ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक ही ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं. बट इसके बाद ये क्या हो गया? फुलफिल्ड हो गया ऑलमोस्ट. राइट ना? वेल स्टेबल हो गया. नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, इसका बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा. बट ये भी यहाँ पे देखेंगे तो ये इससे ज्यादा ही रहेगा हमेशा. ठीक है.
So that is right out. Clear है? sir. Yes, sir. Good. Note down कर लो. हाँ सर. चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ. क्वेश्चन में मजा आ रहा है? क्वेश्चन देता हूँ एक और. Yes, sir. चलिए. चलेगा, थोड़ा स्लो हो रहा है, आप टेंशन मत लो. हाँ, चीजें क्लियर होती जा रही ना. देखते हैं. अब आपको अरेंज करना है इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे. एक मैं और क्वेश्चन देता हूँ. आप नोट डाउन कर लो पहले. हो गया ना ये? Yes, हाँ sir. सर. ठीक है, देखो मैं देता हूँ यहाँ पे. Arrange following in their increasing. अच्छा लिखता है डिक्रीजिंग ऑर्डर. हाँ, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी. और कौन कौन सा एलिमेंट दिया मैंने यहाँ पे? दे दिया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, N प्लस एंड O प्लस. चलिए अरेंज कीजिए अब. चलो अरेंज करो. इसको मैं हटा देता हूँ. यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको. चलो यहाँ पे दे दो. चलिए अरेंज किया. Try किया. सर. बोलो. बोलो. सर पहले N प्लस होगा, हम्म. फिर N होगा, फिर O होगा, फिर C होगा. परफेक्ट. वेरी गुड. वेरी गुड. पहला N प्लस हो जाएगा राइट ना. क्योंकि भले ही ये पार्शियली फील्ड है बट ये कैसा है? सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी राइट ना. तो ऑलवेज ग्रेटर होगा. परफेक्ट. वेरी गुड. राइट है ना? समझ में आया क्या? हाँ सर. Sir. हाँ. वेरी गुड.
चलिए अभी मैं ट्रेंड की बात करता हूँ, ठीक है। वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड मींस व्हाट? ट्रेंड ऑफ द आयोनेशन एंथैल्पी। जनरल ट्रेंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी in group and in period। ठीक है, ग्रुप में क्या होगा और पीरियड में क्या होगा, ठीक है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट में क्या होता है, स्मूथली यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है, zigzag। तो वी कैन राइट हियर along period ionization enthalpy increases right with some exception, no? That is what Z effect increases, राइट है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, सीधे जैसे मैंने बोल दिया लिथियम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, राइट है। सो लेफ्ट टू राइट इट इज व्हाट इंक्रीजेस। आपको पता है जेड इफेक्ट जो होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज व्हाट इंक्रीजेस, देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजेस, बट फ्लक्चुएशन विल क्रिएट हियर, राइट। एक्सेप्शनल केस में बोला है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, राइट। So we can say that is what nitrogen is greater than oxygen. That's the fluctuation. मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है। Now along the group, अगर हम पीरियड की बात कर लिया तो ये हो गया। ग्रुप में कैसा होगा, यहाँ पे कैसा आएगा, लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टॉप टू बॉटम ग्रुप में, देखो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, along ग्रुप along a group ionization enthalpy decreases, ठीक है, as Z effect constant is what increases, sorry, number of cell increases, हाँ, number of cell increases, यहाँ पे 2 सेल है, 3 4 5 6, number of cell increases means distance increases। जरा देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे जब हम पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, सेम शेल में। So when we move from left to right, then we are observing here atomic number increases, and because of the increasing the atomic number, its nuclear charge increases, and because of increasing the nuclear charge, its nuclear attraction force increases. At the same time, electron also increases, but in the same cell. That's why nuclear attraction force increases and electron increases in same cell. That's why its size become decreased, and nuclear attraction force increases, so difficult to release the electron. That's why left to right ionization enthalpy increases,
But when we move from top to bottom, then we observe that number of shell increases. When number of shell increases, then distance from nucleus to outermost shell is what increases. And because of distance increasing, its nuclear attraction force decreases and easy to remove this electron. That's why ionization energy is what decreases. Clear है? हाँ सर. Good. अब देखो जरा से यहाँ पे एक्सेप्शन देखो, यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन आएगा, राइट ना? मैंने बताया था ना आपको, बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन, और यहाँ पे आएगा, ये दोनों जगह पे एक्सेप्शन आएगा। इसके नीचे के जो पीरियड में आते हैं एलिमेंट, जैसे यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, राइट ना? राइट, यहाँ पे भी आ जाएगा वेरिएशन में, तो इसको भी आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है? डन, रिटेन। Yes, sir. गुड, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो क्या आता है, एक जरा समझ लेना। यहाँ पे आता है एच, एच ई, पहला क्या आता है एच, और यहाँ पे क्या आता है एच ई, ठीक है। हीलियम और सीजियम, ये दोनों को देखना है आपको। देखो यहाँ पे क्रॉस करते हैं, तो इसका कैसा होता है, हाईएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी, हाँ, और इसका कैसा होता है, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, लोवेस्ट आयोनेशन एंथैल्पी। क्या आपको समझा ये? देखो यहाँ से जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे सबका जो नोबेल गैस होंगे डिक्रीज करेगा, तो हीलियम का सबसे ज्यादा होगा और यहाँ पे इसका सबसे कम होगा। दैट इज व्हाट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। समझ में आ रहा है, हीलियम और सीजियम, राइट? हाँ सर. गुड, नोट डाउन करो। अब यहाँ पे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो कैसा है, हैव डन। Yes, sir. देखो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे ये देखो, एक सेकंड।
यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी 0, सॉरी 0, ठीक है। एटॉमिक नंबर, आई एम टेकिंग दिस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे ले रहा हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी है किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पे सपोज ले लिया मैंने 500, यहाँ पे ले लिया मैंने 1000, यहाँ पे ले लिया 1500, यहाँ पे ले लिया 200,000, यहाँ पे ले लिया 250, 50,000 ऐसा। यहाँ पे देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। अब जरा देखो यहाँ पे, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 2, 5, 7, 9, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ लिथियम का, हाँ। ऐसा मिला, फिर थोड़ा ऐसा मिलेगा, फिर थोड़ा ऐसा मिला, फिर ऐसा मिलेगा, ठीक। जरा देखते हैं, यहाँ पे ले लिया मैंने एक, ठीक है, लिथियम, फिर यहाँ पे ले लिया मैंने बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसा हो गया बेटा, यहाँ पे दिस इज व्हाट लिथियम, दिस इज व्हाट बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। क्या समझा आपको ये जिगजैग लाइन? थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा ज्यादा होता है, राइट ना, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? यस। I've done. Are you hear me? No, sir, one sir. आप बना लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ना यहाँ पे मैं एक्सेप्शंस लिख देता हूँ। एक्सेप्शन, ठीक है।
ओके, एक्सेप्शंस कहाँ पे होते हैं बेटा? ठीक है, पहला एक्सेप्शन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अलोंग पीरियड हाफ filled and full filled fulfilled configuration have higher ionization enthalpy. ठीक है, that is Be is greater than boron and nitrogen is greater than oxygen. यहाँ पे along group ठीक है, नॉर्मली ग्रुप में डिक्रीज होता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्शन मिलता है आपको गैलियम और एल्यूमिनियम में। जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, गैलियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल्यूमिनियम। ये जरा पार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रुप 14 की, राइट? कैसा होगा यहाँ पे 13, सॉरी नॉट 14, दैट इज 13। अपने पास एलिमेंट कौन से होते हैं? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, तो आपको पता है कि इस ग्रुप में क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम इट इज व्हाट? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, बट एक्सेप्शन होता है यहाँ पे। क्या एक्सेप्शन होता है जरा देखो, आपने ये ग्राफ बना लिया बेटा? Yes, sir. सर। हाँ, कैन आई मूव? हाँ सर। ओके ओके, चलिए अब जरा ये समझ में यहाँ पे कैसा होता है, क्या डिफरेंस होता है इसमें, जरा देखो ध्यान से, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जब हम ग्राफ बनाते बेटा ना, तो बहुत जबरदस्त यहाँ पे चीज मिलती है। देखो यहाँ पे क्या है मिलती, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ग्रुप 13 की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और यहाँ पे लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर। हाँ, देखो यहाँ पे कैसे होता है, बोरॉन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आ जाता है एल्युमिनियम का, फिर आता है यहाँ पे गैलियम, फिर आता है यहाँ पे इंडियम, फिर आता है थैलियम। वाओ, आपको मिला क्या? डब्लू। समझ में आया ये?
कुछ नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो गया, बी एल गैलियम इंडियम हेलियम, डब्लू मिलता है अपने को। डिक्रीज होना चाहिए बेटा, बोरान का सबसे ज्यादा ठीक है, बट एल्यूमिनियम का बहुत कम हो जाता है यहाँ पे, कम होना भी चाहिए, लेकिन गैलियम का इंक्रीज कर जाता है, फिर थैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम का। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? इसके पीछे का लॉजिक है, ये जो होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, ट्रांजिशन, राइट, कॉन्ट्रैक्शन, राइट, डी सब सेल, पुअर शेल्डिंग इफेक्ट, राइट। और इसका जो ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो जरा से इसको समझोगे आप ना, तो यहाँ पे इसके पहले क्या आ जाते हैं, डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, डी सबसेल, डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में। और आपको पता है कि डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं डी सबसेल में, तो डी का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है बहुत कम होता है, तो उसका शेप बराबर नहीं है, डिफ्यूज शेप है, तो इसके लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पहुंच पाता है और इसका बढ़ जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एफ में इलेक्ट्रॉन जाता है और उसके पहले लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन हुआ रहता है और इसलिए इसका बढ़ जाता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे सब समझ में आएंगी जब मैं इंडिविजुअली आपको बताऊंगा डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अभी के लिए यहाँ तक नोट डाउन करके रखते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या मिल गया आपको, यहाँ पे सीक्वेंस क्या मिला इसका, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे हाँ लिखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको रख करके, देखो यहाँ पे लिखते हैं बी ग्रेटर देन हेलियम ग्रेटर देन गैलियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन इंडियम, दैट इज द सीक्वेंस। नंबर देंगे तो इसको 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाता है यहाँ पे 1 5, याद करने का तरीका है 3 2 4। ठीक है, 1 5 3 2 4, दैट इज वे टू लर्न दिस। डब्ल्यू मिलता है अपने को, ये ध्यान रखने का, नोट डाउन कर लो इसको। ग्रुप 14 में भी ऐसा थोड़ा सा होता है। सर इंडियम में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता था। इसमें नहीं, उसमें नहीं आता ज्यादा, क्योंकि जस्ट स्टार्ट हो जाता है, जस्ट डी ब्लॉक यहाँ पे जितना ज्यादा इफेक्ट नहीं गिरता है, कम हो जाता है, यहाँ पे फिर ज्यादा हो जाता है। Yes. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ओनली समझ में आएगा।
Have done? Yes, sir. Okay. Now see this part. यहाँ पे ये भी लिख देते हैं. ग्रुप 14 में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, tin and lead, right? Definitely top to bottom it is what? Atomic radius increases, ionization enthalpy decreases. But यहाँ पे exceptional case मिलता है. इसके lengthened contraction की वजह से. अब जरा देखो यहाँ पे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं. ठीक है, कैसे? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन रिमूवल easily, right? समझ में आ रही मेरी बात? एटॉमिक साइज बड़ी होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजीली, दैट मींस व्हाट? मेटल. अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, राइट, इलेक्ट्रॉन रिमूवल बिकम व्हाट? टफ, दैट बिकम व्हाट? नॉन मेटल, राइट है? So in periodic table when we move from left to right and top to bottom, जरा समझो इसको. लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, राइट ना? सो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है? एज वी नो दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, राइट है? सो इसका मतलब अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रहा है, जरा समझना यहाँ पे, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, राइट? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर decreases, right? Metallic character decreases means what? Acidic character increases. Increases. और ऐसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे? Atomic radius increases, ionization enthalpy decreases, metallic character increases, right? इसका मतलब क्या हो गया? बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. Increases. Note down this part. आपको समझाए कॉन्सेप्ट ना? लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, राइट ना? अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा. एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा. आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. नोट डाउन दिस पार्ट. तो ये ऑलमोस्ट सारा इंफॉर्मेशन हो गया अबाउट दिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, तो आज यहां तक ही करते हैं.